بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے اپنے لیے بڑی ہی بری موت کا چناؤ کیا ہے۔ رگو دادا بھیانک آواز میں گرجا۔ رگو دادا، کمزور نہتی عورتوں کو اپنی مردانگی کے جوہر دکھانا بہت آسان ہوتا ہے، میں طنزیہ لہجے میں بولا، لیکن جس وقت سامنے مرد آئیں تب تیرے ہی جیسے ہجڑوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ مردانگی کیا ہے۔ اس وقت دروازے پر دستک سنائی دی اور ساتھ ہی کسی نے زور زور سے پکارا، رگو دادا، رگو دادا، قیدی بھاگ گیا ہے، دفع ہو جاؤ کتوں۔ میری باتیں سن کر رگو کا پارا یوں بھی آسمان کو چھو رہا تھا اور وہ غصہ بھی انہی پر نکال دیا۔ تمہارا باپ بھاگا نہیں، ادھر ہی ہے۔ رگو کو اپنے گرگوں کے ساتھ مصروف گفتگو دیکھ کر میں نے اپنی جیکٹ اور قمیض اتار کر چارپائی پر ڈال دی، کیونکہ اس دیو کے ساتھ لڑائی کے دوران مجھے بہت زیادہ تیزی کی ضرورت پڑتی، جس میں جیکٹ اور قمیض لازمن رکاوٹ بنتی۔ دادا، پھر ہم کیا کریں؟ باہر سے سہمی ہوئی آواز آئی۔ بتایا تو ہے، دفع ہو جاؤ۔ اس کی ہڈیاں توڑنے کے لیے رگو دادا کو کسی کتے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جی دادا، کہہ کر وہ دروازے سے ہٹتے چلے گئے۔ اس بات کا اندازہ مجھے ان کے دور جاتے قدموں کی چاپ سے ہوا۔ میں نے نظر ترچھی کر کے شیتل کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک اسی حالت میں کھڑی تھی، کپڑے کا تار تک اس کے جسم پر موجود نہیں تھا۔ رگو نے اس کے لباس کو چیر پھاڑ کر اس کے جسم سے علیحدہ کیا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر چارپائی پر پڑی جیکٹ اٹھائی اور اس کی طرف اچھال کر بولا، یہ پہن لو۔ گو وہ جیکٹ اس کے جسم پر بہت کھلی تھی، لیکن برہنگی چھپانے کے لیے غنیمت تھی۔ شیتل نے جھپٹ کر جیکٹ کو پکڑا اور پہن لی۔ جیکٹ نے رانوں تک اس کے بدن کو چھپا لیا تھا۔ واہ بھائی واہ، رگو اپنی منحوس آواز میں گرجا۔ بڑی تکلیف ہو رہی تھی تجھے، لیکن کب تک چھپاؤ گے اسے؟ جس پر رگو کا دل آ جائے اسے رگو ضرور حاصل کرتا ہے۔ رگو، بھونک اچھا لیتے ہو۔ شیتل کی طرف سے بے فکر ہو کر میں نے اسے چھیڑا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے اتنے غصے میں کر دوں کہ وہ اپنے دفاع سے غافل ہو جائے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ رگو غصے میں دھاڑتا ہوا میری طرف بڑھا۔ میں نے اپنی جگہ پر تیار کھڑا تھا، میرے قریب پہنچ کر اس سے پوری قوت سے اپنا دایاں بازو گھمایا۔ میں نے جھکائی دے کر اس کا وار خطا کیا۔ وہ اپنی جھونک میں گھوم گیا تھا۔ پشت پر لگنے والی میرے پاؤں کی ٹھوکر سے وہ بے ساختہ چند قدم دوڑتا چلا گیا۔ اس کے مڑنے سے پہلے میں نے اپنے دائیں پاؤں پر گھوم چکا تھا۔ میرے بائیں پاؤں کی ایڑی اس کی چھاتی سے ٹکرائی اور وہ کولوں کے بل زمین پر گر پڑا، لیکن اسے اٹھنے میں دیر نہ لگئی اور اٹھ کر اپنے دائیں پاؤں کی ٹھوکر پوری قوت سے میری چھاتی پر دے ماری۔ میں نے دونوں ہاتھوں کا کراس بنا کر اس کی ضرب سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں میرے پاؤں ان بیلنس ہو گئے اور میں نیچے گر پڑا۔ رگو نے مجھے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، لیکن اس کی ہر ٹھوکر مجھے ہتھوڑی کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ غصے کی شدت میں پھنکار رہا تھا اور اس کے منہ سے کسی گندے گٹر کی گندگی کی طرح واہیات گالیاں نکل رہی تھیں۔ تیسری چوتھی ٹھوکر پر اس کا پاؤں میرے ہاتھ میں آ گیا، جسے کھینچ کر میں نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں اچھل کر کھڑا ہوا اور اپنے پاؤں کی ایڑی پوری قوت سے اس زمین سے اٹھتے رگو کے ماتھے پر دے ماری۔ اس کا سر ایک دھماکے کے ساتھ زمین سے ٹکرایا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ فرش پختہ نہیں تھا، ورنہ اس کا کام ہو گیا ہوتا۔ زمین کچی ہونے کے باوجود اس کے منہ سے کراہ خارج ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے گندی گالیوں کی بوچھاڑ نکلی۔ کھڑے ہو جاؤ زنخے، میں اسے غصہ دلاتا ہوا بولا۔ عورتوں کی طرح کوسے دینے سے بات نہیں بنے گی۔ وہ ایک مرتبہ پھر بکتا جھکتا کھڑا ہوا۔ میں نے اپنی ٹانگ لہرا کر اس کی چھاتی میں مارنے کی کوشش کی، لیکن میری ٹانگ اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے میرے پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر مجھے ہوا میں گھمانا چاہا۔ اگر وہ اس بات میں کامیاب ہو گیا ہوتا تو آسانی سے گھما کر مجھے کسی دیوار سے ٹکرا دیتا، لیکن میں نے وہ پاؤں اس کے ہاتھ میں رہنے دیتے ہوئے اچھل کر اپنے دوسرے پاؤں کی ٹھوکر اس کے قریب چہرے پر دے ماری۔ میرا پاؤں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ منہ کے بل زمین پر گرنے لگا، لیکن میں اس بات کے لیے تیار تھا، اس لیے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر میں نے اپنے چہرے کو زمین سے رگڑنے سے بچا لیا۔ رگو دادا میری طرف بڑھنے کی بجائے اپنے کپڑوں کی طرف دوڑ پڑا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کوئی ہتھیار لینے کے چکر میں ہے۔ میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ اس وقت جھک کر اپنے کپڑوں سے کچھ نکالنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اگر میں اسی طرح دوڑ کر اس کی طرف بڑھتا تو وہ لازماً ہتھیار نکال لینے میں کامیاب ہو جاتا۔ میں اپنی جگہ سے اچھلا اور ہوا میں تیرتا ہوا اس پر جا پڑا۔ اپنی کمر پر لگنے والی میرے سر کی چوٹ سے وہ منہ کے بل گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اسے پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ اسے ٹھوکریں لگاتے ہوئے مجھے عجیب سی لذت محسوس ہو رہی تھی، اور ایسا شاید شیتل کے ساتھ اس کے ناروا سلوک کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس نے میرا پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میری پھرتی کی وجہ سے اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ لڑکنیاں کھاتا ہوا میرے پاؤں کی پہنچ سے دور ہٹتا اور پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پسینہ دھاروں کی صورت میں ہم دونوں کے جسموں سے بہہ رہا تھا۔ رگو کسی تھکے ہوئے کتے کی مانند ہانپ رہا تھا۔
اس کی پہلی اکڑفوں اور دم خم رخصت ہو چکا تھا۔ اب اسے کوئی راہ فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ رگو، میں نے اسے استہزائیہ انداز میں پکارا، میں نے کہا تھا نا کہ لڑائی بھڑائی مردوں کا کام ہے۔ اب بھی اگر تم چوڑیاں پہن کر ایک ٹھمکا لگا کر دکھا دو تو میں تمہیں زندگی کی بھیک دے سکتا ہوں۔ میری بات سنتے ہی رگو ایک مرتبہ پھر غصے میں بکتا جھکتا میری جانب بڑھا۔ غصے کی شدت میں وہ اپنے دفاع سے بالکل غافل ہو گیا تھا، جو کہ میرا متمان نظر تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا، میں نے اپنا سیدھا پاؤں اس کی بائیں سائڈ کی پسلیوں کے نیچے مارا۔ وہ اوہ کی آواز کے ساتھ رکوع کے بل جھک گیا۔ مجھے بھی اس کی یہی پوزیشن درکار تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی موٹی گردن میرے بائیں بازو کی گرفت میں تھی۔ رگو، تجھے کہا تھا نا چوڑیاں پہن کر اپنی جان بخشی کروا لے۔ میں اس کی گردن پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا، مگر تو یہ نہ مانا۔ اب اپنے کروس شیطان کو یاد کر لے کہ یہ تیرا آخری وقت ہے۔ رگو نے تڑپ کر اپنی گردن میری گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش اتنی ہی ناکام گئی جتنی بلی کے منہ میں پھنسے کسی چوہے کی جان بچانے کی کوشش ناکام جاتی ہے۔ میں نے اپنے بائیں بازو کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا اور کٹاک کی آواز کے ساتھ رگو کا جسم میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ میں نے اسے نفرت سے زمین پر پھینک دیا۔ کونے میں سمٹی شیتل بھاگ کر قریب آئی اور وارفتگی کے ساتھ مجھ سے لپٹ گئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ میرے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، چاہت سے بولی۔ وہ میرے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چاہت سے بولی۔ ہاں، میں گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کا اس طرح وارفتگی سے میرے ساتھ لپٹنا مناسب نہیں تھا، لیکن کوشش کے باوجود میں اسے خود سے علیحدہ نہ کر سکا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے بازوؤں کو اس کے گرد گھیرا ڈالنے سے باز رکھا۔ سردی کے باوجود اتنا پسینہ، وہ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کا پسینہ پوچھنے لگی۔ میں کھانا نہیں کھا رہا تھا، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ میری خاطر، ہے نا؟ میرے سینے کے ساتھ اپنا رخسار رگڑتے ہوئے وہ پیار سے بولی۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی اور شیتل کے اپنی طرف بڑھتے قدموں کو روکنے کے لیے میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، تیری جگہ کوئی بھی عورت ہوتی تو میں یہی کرتا۔ ہاں، آپ ہیں ہی اتنے اچھے، اتنے پیارے۔ اچھا، آپ مجھ سے علیحدہ ہونے کی زحمت کریں گی؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً بولا۔ ابھی تک اس کے گرگے صحیح سلامت باہر موجود ہیں۔ آپ کی موجودگی میں مجھے کسی قسم کا خوف نہیں۔ میں کب تک تیرے پاس رہوں گا؟ میں نے ایک تلخ حقیقت بیان کی، جس کا جواب اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے مجھ سے علیحدہ ہوئی اور چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس مضحکہ خیز لباس میں بھی وہ اتنی ہی سندر اور پیاری لگ رہی تھی جتنی کسی بھی نئے فیشن کے لباس میں لگتی۔ لباس اور زیورات ہمیشہ سے عورت کی کمزوری رہے ہیں۔ بلا امتیاز کسی رنگ، مذہب، نسل اور قومیت کے عورتیں ان لوازمات کی دلدادہ ہوتی ہیں، لیکن حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ عورتوں کا پاگل پن ہے۔ حسن کبھی بھی لباس یا آرائش کا محتاج نہیں رہا۔ اچھی صورت ہر لباس اور بغیر آرائش کے بھی اچھی ہی لگتی ہے، جس طرح چمڑے کی جیکٹ میں ملبوس شیتل لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے سراپے سے نگاہیں ہٹائیں اور زمین پر بکھرے رگو کے لباس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے لباس کی تلاشی لینے پر کوبرے کا بریٹا اور نیلم کا چھوٹا پسٹل دونوں اس کی جیب میں پڑے مل گئے۔ ایک تیز اور لمبی چوڑی دھار کا خنجر بھی چمڑے کے کور میں بند مجھے نظر آ گیا۔ نیلم کا پسٹل میں نے اپنی پتلون کی جیب میں ڈالا، جبکہ خنجر کا کور اپنی جراب کے نیچے پنڈلی کے ساتھ ایک تسمے سے باندھ دیا۔ شیتل اس دوران خاموشی سے چارپائی پر بیٹھی میری حرکات کو دیکھ رہی تھی۔ بریٹا ہاتھ میں لے کر میں دروازے کی سمت بڑھا اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ وہ ایک سادہ سی عمارت تھی۔ تمام کمرے ایک قطار میں بنے ہوئے تھے۔ سورج کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ہر کمرے کا دروازہ مشرقی سمت میں تھا۔ عمارت کی شمالی اور جنوبی دیوار کے ساتھ بھی ایک ایک کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا، جن کا رخ ایک دوسرے کی طرف تھا۔ تمام کمروں کے سامنے ایک کھلا اور وسیع برآمدہ تھا اور اس کے بعد ایک لمبا چوڑا وسیع صحن تھا۔ کمروں کے دروازے باہر کی جانب کھلتے تھے، اس لیے میں نے احتیاط سے باہر جھانکا کہ دور سے ہی دروازہ کھلتا نظر آ جاتا، لیکن خوش قسمتی سے مجھے برآمدہ اور صحن خالی نظر آئے۔ بائیں ہاتھ کے ایک کمرے سے مجھے ہلکی ہلکی گانے کی آواز آ رہی تھی، شاید کوئی ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر پر گانا سن رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر شیتل کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا تو وہ تو جیسے میرے اشارے کی منتظر تھی، بھاگ کر میرے قریب آ گئی۔ میں نے چھوٹا پسٹل اس کے حوالے کر کے کہا، میں بائیں سمت کو جا رہا ہوں، تم کمرے کے اندر رہتے ہوئے داہنی جانب نظر رکھنا، یہ نہ ہو پشت کی جانب سے کوئی مجھے پار کر دے۔ بھگوان نہ کرے، وہ جلدی سے بولی، برے شب تم منہ سے نہ نکالو۔ گولی تو چلا لو گی نا؟ میں مستفسر ہوا۔ یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا، وہ شرارت سے مسکرائی اور میں سر ہلاتا ہوا آواز والے کمرے کی سمت میں بڑھتا چلا گیا۔ وہ ریڈیو کی آواز تھی، کیونکہ جس وقت میں کمرے کے نزدیک پہنچا اس وقت کمپیئر سامعین کے خطوط پڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ رگو کے گرگوں کی بات چیت کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میں دبے قدموں دروازے کے قریب پہنچا۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ میرے ہاتھ میں موجود پستول فائرنگ پوزیشن میں ریڈی تھا۔ ہینڈز اپ۔ میں دروازے کو مکمل طور پر کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا،
वो दोनों चारपाइयों के ऊपर लेटे मसरूफ़ गुफ्तगू थे। इनका तीसरा साथी इधर उधर नजर नहीं आ रहा था। मेरी धाड़ सुनकर वो उछल पड़े, लेकिन हाथ उठाने की जरूरत उन्होंने महसूस ना की और झपट कर अपनी कलाशन कोफे उठानी चाही। लेकिन ये इनकी खामख्याली थी। बेटा पिस्तौल की मजल से निकलने वाली बेरहम गोलियां इनसे ज्यादा तेज साबित हुई। दोनों की खोपड़ियों में सुर्ख रोशनदान खुल गए। मैंने पिस्तौल अपने बेलेट में उड़सा और झपट कर चारपाई के साथ खड़ी कलाशनकोफ उठा ली। तीसरे बंदे का कोई पता ना था कि वो किधर छुपा हुआ था। मैं जैसे ही बाहर निकलने के लिए मुड़ा, मुझे हल्के हल्के दो धमाके सुनाई दिए। ये नीलम के पिस्तौल की आवाज थी। मैं भाग कर बाहर निकला। बरामदे में तीसरा आदमी पड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मेरे सामने रघु, अनिल और उनके साथ यही तीन बंदे आए थे जो इस वक्त जहन्नम रसीद हो चुके थे। लेकिन ये बात बईदस क्यास नहीं थी कि इनके अलावा भी इस जगह इनका कोई साथी पोशीदा होता। मुझे देखकर शीतल भी कमरे से निकल आई। इधर ही रहो, मैंने इसे वापस कमरे में जाने का इशारा किया और वो जल्दी से कमरे के अंदर हो गई। लाश के करीब पड़ी कलाशन को उठाकर मैं भी शीतल के पीछे कमरे में घुस गया। इधर कितने बंदों को खत्म कराए हो? दो थे, और तीसरा तेरे हाथों अपने इंजाम को पहुंच गया। वो बावर्ची भी तो था जो हमारे लिए खाना लेकर आया था, वो मुझे याद दिलाते हुए बोली। मैं इसकी बात सुनकर हकीकतन उछल पड़ा। तुम इसी कमरे में रहो और अंदर से कुंडी लगा लो। जब तक मेरी आवाज़ पहचान ना लो, दरवाज़ा नहीं खोलना। ठीक है, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली और मैं एहतियात से चलता हुआ निकल आया। शीतल मेरे बाहर आते ही अंदर से कुंडी चढ़ा दी थी। मैंने एक तरफ से कमरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। मतलूबा शख्स मुझे बाएं जानिब के आखिरी कमरे में मिल गया, लेकिन इसकी हालत में कि कोई काम करने के काबिल नहीं था। वो किसी नामालूम नशे के जेरे असर धत पड़ा था। वो अफीम, चर्स, भंग, शराब से लेकर कोकेन पाउडर तक किसी चीज़ का नशा भी हो सकता था। मैंने इसे हिलाया जुलाया, मगर इसमें कोई जंबिश पैदा ना हुई। इसके कमरे की तलाशी लेने पर मुझे थोड़ी सी नकदी के अलावा कोई काम की चीज़ ना मिली। वो गालिबन इनका बावर्ची था और दोपहर के खाने के बाद आराम फरमा रहा था। यूं भी नशेई बंदा अपना नशा लिए बगैर सो नहीं सकता। इसकी चारपाई के नीचे झांकने पर घटिया शराब की 3-4 बोतलें पड़ी नजर आईं। इन बोतलों पर कोई लेबल वगैरह लगा हुआ नहीं था। इसका मतलब था कि वो मकामी तौर पर तैयार की गई शराब थी। इंडिया में शराब की भट्टियाँ वाफे मिकदार में पाई जाती हैं और शौकीन हजरात भी इतनी ही कसरत से पाए जाते हैं। मुसलमानों के अलावा किसी भी मजहब के पैरोकार इससे एतराज़ नहीं बरतते, बल्कि आजकल तो खाली खाल ही ऐसे मुस्लिम पाए जाते हैं जो इस उम्मुल खबाइस से परहेज करते हों। वो बावर्ची मुख्तसर कामत का शख्स था। इसका लिबास शीतल को फिट आ सकता था। मैंने इसके सामान में से एक साफ सुथरी पैंट शर्ट उठाई और इसके कमरे को बाहर से कुंडी चढ़ाई ताकि होश में आने पर वो कोई गड़बड़ ना कर सके, और शीतल के कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरी आवाज़ पहचानते ही इसने दरवाज़ा खोल दिया। वो बावर्ची अपने कमरे में नशे में धुत पड़ा है। मेरा अंदाजा है कि इसका लिबास तुझे फिट आ जाएगा। लो, ये पहन लो। मैंने लिबास इसकी सिमत बढ़ाते हुए कहा, और मेरी जैकेट वापस करो। तेरी जैकेट तो मैं ही खाई जाऊंगी ना? वो मसनूई खफगी से बोली। ये लो। इसने जिप खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा दिल बेख्तियार धड़क उठा। उधर दफा हो जाओ, मैंने बाथरूम की तरफ इशारा करके कहा। हाँ हाँ हाँ, वो शरारत से हंसी। दिल तो बड़ा कर रहा है, लेकिन ऊपर ही ऊपर से कह रहे हो कि उधर चली जाओ, ताकि मैं जिद में आकर इधर ही चेंज कर लूँ। तुम्हारी ये हसरत कभी भी पूरी नहीं होने दूंगी। मैंने तंजिया लहजे में कहा। सब कुछ को मेरा देखा भाला तो है। सही कहा, लेकिन अब दिल कर रहा होगा ना कि दोबारा देखने को। यूं भी मैं हूं ही ऐसी कि जो एक मरतबा देख लेता है वो यही कहता है देखने की चीज़, इसे बार बार देख। इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरी बकवास सुन सकूं। सच्ची बात सुनकर गुस्सा आ ही जाता है, वो शौकी से बोली, और मैं पाँव पटकता कमरे से निकल आया। बाहर आकर मैं एक मरतबा फिर तमाम कमरों की तलाशी तफसील से लेने लगा। थोड़ी सी नकदी के अलावा मुझे कोई काम की चीज़ ना मिली। सारे कमरों में घटिया शराब, फहिश तस्वीर, चर्स, सिगरेट और इसी किस्म की दीगर अशिया वाफ़े मिकदार में मौजूद थी। मैं एक मरतबा फिर इस बावर्ची नुमा शख्स के कमरे में घुस गया। इसके चेहरे पर पानी फेंकने और थप्पड़ मारने पर भी मैं इसे होश में न ला सका। मजबूरन मैं इसे इसके हाल पर छोड़कर बाहर निकल आया। कमरे की कुंडी लगाना मैं नहीं भूला था। शीतल मुंह फुलाए कमरे के दरवाजे में खड़ी थी। बावर्ची का लिबास उसे बिल्कुल फिट आया था। मैं इससे बात किए बगैर कमरे में दाखिल हो गया। मेरी कमीज़ और जैकेट चारपाई पर पड़ी थी। जैकेट वगैरह पहनकर मैंने पतलून की जेबों में ठोसा हुआ सारा सामान जैकेट की जेबों में मुंतकिल किया और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया। वो जगह हमारे लिए महफूज नहीं थी। ज़रूरी नहीं था कि रघु के गुर्गों की तादाद 3-4 ही हो। हवेली की साख से तो लगता था कि इसमें काफ़ी बंदे रिहाइश पजीर थे। हवेली के सहन में शीतल की कार और एक जीप खड़ी थी। ये वही जीप थी जिसमें कल रात अनिल और इसके साथी सवार थे। चलो, मैं क्लाशनकोफ की 2 फालतू मैगजीनें जेब में डालकर शीतल से मुखातिब हुआ। ये जगह हमें फिलफौर छोड़नी पड़ेगी। नहीं, वो हरदर्मी से बोली, मैं यहीं पे ठीक हूँ।
इसने अपना मुंह बिल्कुल किसी बीवी की तरह फुला दिया था। खुदा हुस्न देता है और नाजो अदा हसीन खुद सीख लेते हैं। अपनी अदाओं से किसी भी अकल खप्त कर देना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। भोलपन और सादगी इनके ऐसे तीर होते हैं जिनका निशाना कभी खता नहीं जाता। शीतल भी हजारों नहीं लाखों करोड़ों में एक थी। इसकी आम हरकत भी नाजो अदा के खिलाफ में लिपटी दिखाई देती थी। किसी मर्द के खिलाफ अगर वो मैदान अमल में कूद पड़ती तो इस मर्द का बचना नामुमकिनात में से होता। मुझे भी इसकी हरकत देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि मेरे खिलाफ वो सरगर्म अमल हो चुकी है। अगर वो मुझे आम हालात में मिली होती तो इससे दामन छुड़ाना मेरे लिए हकीकी मानों में कायदाद साबित होता, लेकिन इसकी या मेरी बदकिस्मती के हालात नामवाफिक थे। बकौल शायर, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है और मेरे अंदर खिजा का मौसम फैला हुआ था। हालात की संगीनी और घर की याद ने मुझे ज़हनी तौर पर इतना डिस्टर्ब किया हुआ था कि सिनफ़े नाजुक के लिए मेरे लतीफ़ जज्बात पर ओस पड़ी हुई थी। इस वक्त शीतल की ख्वाहिश थी कि मैं इसे मनाऊं, लेकिन मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं था कि किसी आशिक की तरह इसकी कदम बोसी करता रहूं। ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं समझी। मैंने इसे बाजू से पकड़कर सहन की तरफ धकेला। कह जो दिया नहीं जाना। वो अपना मुलायम बाजू एक झटके से मेरी गिरफ्त से छुड़ाते हुए बोली, जहन्नम में जाओ। मैंने वो सीले लहजे में कहा और लंबे लंबे डग भरता हुआ सहन में खड़ी गाड़ियों की तरफ बढ़ गया। दोनों गाड़ियों में मुझे सफ़र करने के लिए शीतल की कार मुनासिब मालूम हुई। खंजर निकालकर मैंने जीप के दोनों अगले टायर बेकार कर दिए ताकि इसमें बैठकर कोई हमारा ताकुब ना कर सके। गो इसका इम्कान नहीं था, लेकिन एहतियात के तौर पर मैं ऐसा करना ज़रूरी समझता था। हवेली का दाखिली दरवाज़ा खोलकर मैंने बाहर झांका। खिलाफ तवक्का बाहर मुझे छदरे छदरे दरख्त नज़र आए जो दूर तक बतदरीज घने होते चले गए थे। इमारत के नज़दीक मुझे कोई और तामीर नज़र नहीं आई। इसका मतलब है हम शहर से काफ़ी दूर लाए गए थे। मैं आहिस्ता से बड़बड़ाया और वापस मुड़कर कार में आ बैठा। वो मुझसे पहले ड्राइवर के साथ वाली सीट पर आकर बैठ गई थी, लेकिन मैंने इससे बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। मैं इसकी नाराज़गी के सबब से भी वाकिफ़ था और इसकी खफगी को दूर करने के फ़न से भी आशना, मगर हालात और मेरी दिमागी परेशानियां इस इजाफी बोझ को बर्दाश्त करने की मुतहम्मल नहीं हो सकती थी। शीतल से ताल्लुकात बढ़ाना अपनी मंजिल खोटी करने के मुतरादिफ था, इसलिए इस लायानी मसले को पसे पुश डालते हुए मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। गेट से बाहर मुझे दो रास्ते मुखालिफ सिमतों में जाते दिखाई दिए। जिस वक्त रघु ग्रुप ने हमें अगवा किया था, इस वक्त हम दिल्ली शहर के जुनूब मशरिकी सिमत में थे और मेरा गुमान था कि अभी हम दिल्ली शहर के मज़ाफ़ात में शहर से मशरिकी सिमत में मौजूद थे। दिल्ली शहर की तरफ वापस जाना ओखली में सर देने के मुतरादिफ था। ये सोचते हुए मैंने गाड़ी का रुख जनूब की सिमत में मोड़ दिया। शीतल आंखें बंद करके सीट से टेक लगाकर बैठी थी, इस तरह गोया गाड़ी में वो बिल्कुल अकेली हो। मैं भी खामोश रहने में आफियत समझी। रास्ता नाहमवार और टेढ़ा मेढ़ा था। नॉर्मल रफ्तार से चलते हुए भी मुसलसल झटके लग रहे थे। मेरा इरादा था कि पुख्ता रोड पर पहुंचते ही कार माँ शीतल के छोड़ दूं। अब ज़्यादा देर इसको अपने साथ लगाए रखना गैर मुनासिब था, लेकिन तकदीर की हमेशा इरादों की मुखालफत रही है। बकौल हज़रत अली, मैंने खुदा को अपने इरादों की नाकामी से पहचाना। हमें रवाना हुए बमुश्किल आधा घंटा हुआ था कि कार एकदम बंद हो गई। मैंने सेल्फ घुमाया, लेकिन कार घू घू करके रुक गई और खामोश हो गई, और मेरी 2-3 मरतबा की कोशिश करने पर भी स्टार्ट ना हुई। कमांडो साहब, शीतल जो जाने किस टाइम से आंखें खोले मेरी कोशिशों को देख रही थी, तंजिया लहजे में बोली, फ्यूल गेज को देखने की ज़हमत फरमाएं, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। आप अगर चंद टके खर्च करके टैंकी फुल रखती तो आज हमें ये दिन देखना नसीब ना होता। मैंने तो मिन्नत करके महाराज को बुलाया था ना, वो तलखी से बोली। एक तो मुफ्त अपने साथ ख्वार कर दिया है, ऊपर से ताने सुनो। मुझे अगर पता होता कि इतनी कंजूस सेठजादी से वास्ता पड़ेगा जो कार में पेट्रोल डालने की जहमत ही नहीं करती, तो मैं कभी भी तेरी कार के करीब ना फटकता। ओहो कंजूस, तू बड़ा दयालु है। अपने से बड़े को तू नहीं कहते। मैं कहूँगी, वो हरदर्मी से बोली, और तुझे मेरा बड़ा किसने बना दिया है? बदतमीज़, तुम्हारे साथ सफ़र करना ही गुनाह है। ये कहकर कार से निकला और ज़ोरदार झटके से दरवाज़ा बंद करके उसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर रवाना हो गया। वो भी तेज़ी से कार से निकलते हुए बोली, बदतमीज़ किसको कहा है? बदतमीज़ तू खुद होगा। लेकिन मैं इसकी बात का जवाब दिए बगैर आगे बढ़ने लगा। मुझे मालूम था कि वो मेरे पीछे ही आएगी। वाह, वो दौड़कर मेरे करीब पहुंची और मेरे साथ चलते हुए बोली, जब तक मेरे पास कार थी इस वक्त तक मेरे साथ सफ़र करना पुण्य था, जो कार के ख़राब होने पर पाप हो गया। हा हा हा, मैं इसकी बात पर कहकर लगाकर हंसा। ही, वो मुंह टेढ़ा करके मुझे चिढ़ाते हुए बोली, जहर लग रही है मुझे तुम्हारी हंसी।
जवाबन मैंने कहका लगाते हुए कहा, मेरी अपनी हंसी है, जिस टाइम मेरा जी चाहेगा हंसूंगा। अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो अपने कानों में उंगलियां ठोंस ले। सही कहा, किसी ने पागलों के हंसने का कोई टाइम टेबल नहीं होता। पागल किसको कहा? किसी को भी नहीं, सिर्फ पागलों की निशानी बतलाई है। अच्छा, ये बात है, एक निशानी मैं भी बतला देता हूँ। बताओ। इसके लहजे में इश्तियाक था। पागलों का कोई पता नहीं होता कि वो किस टाइम क्या कर गुजरे। एग्जैक्ट। इसने इस बात में सर हिलाया। अगर तुम एग्री हो तो ये लो, मैं तो गया। ये कहकर मैंने रास्ते को छोड़कर जंगल की अंदरूनी सिमत में दौड़ लगा दी। जान, जान, तुम कहाँ चले? वो तकरीबन चीखते हुए बोली। पागल को क्या पता वो कहाँ जा रहा है। मैंने दौड़ते दौड़ते जवाब दिया और अपनी रफ्तार मजीद बढ़ा दी। इसे दौड़कर मेरे करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन फैशनेबल चप्पल पहनकर वो कहाँ तक मेरा मुकाबला कर सकती थी। इसके बरक्स मेरे पाँव में स्पोर्ट्स शूज़ थे और यूं भी मेरी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। जल्द ही मैं इसकी नज़रों से ओझल हो गया, यहाँ तक कि इसकी आवाज़ें आना बंद हो गईं। एक घने से दरख्त का इंतखाब करके मैं इसके ऊपर चढ़ गया और एक दो शाखे के साथ टेक लगाकर अपनी चढ़ी हुई सांसें बहाल करने लगा। थोड़ी देर बाद ही मुझे उसकी हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जान, प्लीज़, सॉरी, दोबारा बदतमीज़ी नहीं करूँगी। तुम कहाँ हो? जान, मुझे डर लग रहा है, सामने आ जाओ वरना मैं रोने लगूंगी। और मैं दो शाखे से टेक लगाए इसकी बातों से लुत्फानंदोज होता रहा। नामालूम क्यों उसे तंग करने में मुझे मज़ा आ रहा था। हालांकि मुझे पता था कि इसका और मेरा साथ मजीद चंद घंटों तक का था। अगर हम दोनों चाहते तब भी हम इकट्ठे नहीं रह सकते थे। सादिया के साथ बेवफाई करने में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी जाने क्यों मैं इस तरह की गैर ज़रूरी हरकत कर बैठा था। मैंने सर झटक कर इन फजूल ख्यालात से भी अपना पीछा छुड़ाया और बम्बई पहुंचने के तरीकों पर गौर करने लगा। बम्बई तक पहुंचना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था, ना मालूम वहां पहुंचकर कौन से हंगामे मेरे मुंतज़िर थे और किन चैलेंजेस का सामना मुझे करना पड़ता। थोड़ी देर बाद ही शीतल मुझे नज़र आ गई। वो अंदाजे से सही सिमत इख्तियार किए हुए थी। झाड़ियों के अंदर झांकती वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। गाये गाये वो मुझे आवाज़ भी दे लेती थी। जैसे ही वो इस दरख्त के करीब से गुजरी जिस पर मैं छुपा बैठा था, मैंने भेड़िए की तरह गुर्राहट नुमा आवाज़ निकाली और वो खौफ से उछल पड़ी और ज़ोर ज़ोर से मुझे पुकारने लगी। नीलम वाला पिस्तौल उसने दोनों हाथों में थामा हुआ था और फायर खोलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मैं एक मरतबा फिर गुर्राया। इस मरतबा इसने आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा लगा लिया और जल्दी से सर ऊपर उठाकर देखा जहाँ मैं दांत निकाले बैठा था। वहशी, जंगली, गवार, वो गुस्से से तपकर बोली, नीचे उतरो वरना मैं गोली चला दूंगी। फिर वही बदतमीजी, मैंने नीचे उतरते हुए कहा। मैं दोबारा भाग जाऊंगा और इस दफ़ा तुझे मिलूंगा भी नहीं। तुम एक कदम तो लेकर दिखाओ, वो पिस्तौल मेरी तरफ तानते हुए बोली। और मैं जवाबन कहका लगाने पर इक्तफा किया, लेकिन इस मरतबा मुझे कोई जवाब देने की बजाय बस गुस्से से घूरती रही। मैंने इससे नज़र मिलाने से गुरेज किया कि इसकी मोटी गिलाफी आंखें मेरे हवास पर छाने लग जाती। अच्छा, अब गुस्सा थूको और चलो, मैं इसके करीब पहुंचता हुआ बोला। नहीं जाना मुझे तेरे साथ। वो जैसे गुस्से से फट पड़ी और इसके साथ ही इसने पिस्तौल नीचे फेंका और दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर रोने लगी। एक मुफक्कर का कौल है कि औरत का सबसे बड़ा हथियार उसके आंसू हैं। वो मर्द जो बड़े बड़े तूफानों का डटकर मुकाबला कर सकते हैं, इन चंद आंसुओं में तिनके की तरह बह जाते हैं। मैं भी इसके रोने से घबरा सा गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसे कैसे चुप कराऊं। सॉरी शीतल, मैं नदामत भरे लहजे में बोला। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। सॉरी, रियली सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। खाओ कसम कि दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, वो हिचकियाँ लेते हुए बोली। मैं इसकी जो मायने बात सुनकर सटपटा गया। कहा तो है दोबारा ऐसे नहीं होगा। नहीं, तुम कसम खाओ। पागल मत बनो शीतल। मैंने इसकी कलाइयों से पकड़कर इसके हाथों को इसके चेहरे से दाएं बाएं किया। मेन रोड पर पहुंचते ही तेरे मेरे रास्ते जुदा होने वाले हैं। नहीं, इसने इंकार में सर हिलाते हुए कहा। जब तक तुम मुझे खैरियत से पिताजी के पास नहीं पहुंचा देते, तुम कहीं भी नहीं जा सकते। अच्छा बाबा, तुम्हें खैरियत से तेरे पिताजी के हवाले करने के बाद ही जाऊंगा। अब तो चलो। और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। कमबख्त एक तो हसीन बला की थी, ऊपर से नाजो अंदाज ऐसे कि 7 साला आबिद को भी अपना कबीरा कर ले। मैंने नीचे झुककर पिस्तौल उठाते हुए अपने कोट की जेब में मुंतकिल किया और अंदाजे से रास्ते की तरफ चल पड़ा। सूरज मगरिब की जानिब सवाल पजीर था। 1.5-2 घंटे में शाम का अंधेरा छा जाता और इससे पहले हमें किसी महफूज ठिकाने के करीब पहुंचना था। मिस्टर, मेरा पिस्तौल वापस करो, वो मेरे साथ बमुश्किल कदम मिलाकर चलते हुए बोली। ये तुम्हारा कब से हो गया? तुमने खुद मेरे हवाले किया था और दी हुई चीज़ वापस लेना धोखा चढ़ने के मुतरादिफ है। पहली बात तो यह है कि मैंने आर्जी इस्तेमाल के लिए तेरे हवाले किया था और दूसरे मैंने तुझसे वापस नहीं लिया है, तुमने खुद फेंक दिया था। बस, मुझे पता नहीं है, वो जिद्दीपन से बोली। तुम पिस्तौल मेरे हवाले करो। ये लो मेरी माँ, मैंने सचमुच से छोकर पिस्तौल इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा।
इस तरह तो मैंने नहीं लेना। तो और क्या, ट्रे में रखकर पेश करूं? मैं गुस्से से बोला। नहीं, थोड़ा प्यार से कहो ना, वो शोखी से बोली। एक बात कान खोलकर सुन लो मिस शीतल, मैं एक एक लफ्ज चबाते हुए बोला। मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे का बाप भी हूँ, और अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूँ जितना कोई भी पसंद की शादी करने वाला कर सकता है। तुम झूठ बोल रहे हो, वो संजीदगी से बोली, लेकिन इसके लहजे में एतमाद की कमी थी। मैंने इसकी बात का जवाब देना जोई ना समझा और सर झटक कर आगे बढ़ता चला गया। जल्द ही हम दोबारा उसी टेढ़े मेढ़े और नाहमवार रास्ते पर आ गए। मेरी कोशिश थी कि हम जल्द से जल्द किसी महफूज मकाम पर पहुंच जाएं, और इस मकसद के लिए मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज रखी। शीतल को मेरे साथ मिलने के लिए मुसलसल दौड़ना पड़ रहा था। हम आधा घंटा ही चले होंगे कि वो रुक गई और रुहासी होकर बोली, मैं थक गई हूँ। ठीक है, तुम अपनी मर्सिडीज में आ जाना, मैं तंजिया लहजे में कहा। ये शादीशुदा होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज़ भी ना रहे। मुझे ना रुकता देखकर वो दोबारा दौड़ पड़ी और मेरे साथ मिलती हुई बोली, अहमक लड़की, सूरज को देख रही हो? मैंने गुस्से से तपकर कहा, एक घंटे 1.5 घंटे में ग्रुप हो जाएगा और इसके बाद इस जंगल में सफ़र करना दुश्वार नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। इसके बाद इसे मेरी तेज़ी की वजह मालूम हो गई, इसलिए वो मेरे साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश करती रही, लेकिन इसकी हालत देखकर मुझे अंदाज़ा होता था कि वो ज़्यादा देर तक मेरा साथ नहीं दे सकेगी। मजबूरन मुझे अपनी रफ्तार में कमी करनी पड़ी। अचानक शीतल ठोकर खाकर नीचे गिर गई और मैंने जल्दी से उसे झुककर इसे बाजू से पकड़कर सीधा करना चाहा, मगर वो मेरे हाथ में झूल गई। इसकी आंखें बंद थीं और इस सर्दी में भी इसके माथे पर पसीना नजर आ रहा था। शीतल, शीतल, मैं जल्दी से इसका सर गोद में रखकर जमीन पर बैठता हुआ बोला, पानी। वो जैसे नींद में बड़बड़ाई। मैंने बेबसी से दाएं बाएं देखा, मगर पानी वहां होता तो नजर आता। इसका कमलाया हुआ चेहरा देखकर मुझे अपनी ही ज्यादती का एहसास हुआ। वो नाजो नाम में पली हुई शेरजादी एक पाकिस्तानी गुरीले के साथ कदम मिलाकर कहाँ तक चल सकती थी। मुझे इसकी रियायत रखकर चलना चाहिए था। मैं अपनी सख्त जानी के जाम में एक कमज़ोर लड़की को अजियत देने का बायस बना था। पता नहीं क्या हो गया है, मुसलसल ऊट पटांग हरकतें कर रहा हूँ। मैंने खुद कलामी की। मैंने कुछ सोचकर उसे कंधे पर उठाया और चल पड़ा। सूरज ग्रूब होने वाला था और इससे पहले कि बिल्कुल अंधेरा छा जाता, मैं चाहता था कि कोई महफूज ठिकाना ढूंढ लूँ। मैं ठीक हूँ। चंद कदम इसे उठाकर चला होऊंगा कि इसकी मिनमिनाई हुई आवाज़ सुनाई दी। हाँ बिल्कुल, आप यहीं पे ठीक हैं, मैं मज़ाहिया लहजे में बोला। गो वो एक सेहतमंद लड़की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल फूल की तरह हल्की फुल्की लग रही थी। यूँ भी आर्मी के अंदर ट्रेनिंग के दौरान लाश और जख्मी को उठाने की तरबियत देते हैं, और इस तरह एक आदमी अपने वजन के बकदर आदमी को आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। वो तो वजन में मुझसे बहुत कम थी। मैं तो अमजद को दौरान तरबियत अपने कंधे पर उठाकर फिराता रहा था। मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकती हूँ, वो एक मरतबा फिर बोली। आराम से पड़ी रहो, मैं मसनूई गुस्से से बोला। अगर तुम चल सकती तो यूँ ना लेट जाती। तू बहुत तगड़ा है ना, वो जलकर बोली। कमजोर लड़की से मुकाबले पर उतर आया है। तू कमजोर कहाँ है, अच्छी खासी 2 फैक्ट्रियों की वारिस शेरजादी है। तो आपको क्या तकलीफ है मुझे मेरे शेरजादी होने में? यूं ही बस उमरा मुझे बहुत बुरे लगते हैं। जलो मत, मेहनत करो और दौलत कमाओ। मैं बाज आया ऐसी दौलत से। और अब नीचे भी उतरो, तुमने तो पक्की सवारी गांठ ली है। एक घने दरख्त को देखकर मैंने इसे कंधे से नीचे उतारता हुआ बोला। मैंने कब तुम्हारी मिन्नत की थी, वो बिगड़ कर बोली। खुद ही शौक था एक खूबसूरत लड़की को कंधों पर उठाने का। ये तुझे किसने कह दिया कि तू खूबसूरत है? मैं इस दरख्त की तरफ बढ़ते हुए बोला। सारी दुनिया कहती है, वो मेरे साथ कदम मिलाकर चलते हुए बोली। इस दुनिया में कम से कम मैं शामिल नहीं हूँ। ये कहकर मैं बूट उतारे बगैर इस मजबूत तने वाले दरख्त पर चढ़ने लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।